a new chapter of geography. The theme of the chapter is resource and development. According to the theme, and in your earlier classes, especially in class 8, you already read about the resources. If I ask a question, what do you mean by a resource? First of all, we have to understand the meaning of source and resource. सोर्स से ही रिसोर्स बना है. किसी भी चीज का जहां से ओरिजिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स. और व्हेनेवर वी यूज दैट रिसोर्स फॉर ओन पर्पसेस टू फुलफिल आवर नीड्स एंड वांट्स, इट बिकम्स अ रिसोर्स. अगर हम इसको छोटा सा ऐसे ही समझ लें कि रिसोर्स क्या है ना, रिसोर्स दैट ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन नेचर. यूं समझ ले मटेरियल है ना, मटेरियल्स होते हैं. अब मटेरियल्स की अगर हमें नीड्स है, फिर हमने उसको यूज किया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, तो क्या बना? रिसोर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि रिसोर्स क्या है. अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में, प्रॉपर एक लैंग्वेज में समझें कि सोर्स का मतलब जहां से चीज का ओरिजिनेशन हुआ, फिर वो उस चीज को हमने क्या किया? यूटिलाइज किया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया. ठीक है, तो वो क्या बना? रिसोर्स. जैसे कि बहुत ही जनरल सब है, आपको एग्जांपल देती हूँ. जब हमें प्यास लगती है, व्हेनेवर वी थर्स्टी, तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं. So this water is a resource. Here, what it means, the water is a resource because we use it and we also increase its value. We everybody know whenever if we don't have a bottle of water, we have to buy it, and for the buy we have to pay. In this way, we increase the value of that resource. Now, I hope that you understand the meaning of resource. And now, what is the proper definition of a resource? We can say the things, all the things which are available in nature that we use to fulfill our wants and needs. And according to, we can say, the geographical language, it should be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. What it means? It means that resources which are available in nature, that we use them to fulfill our needs and wants. On the other hand, it should be technological accessible, means whatever the technology in present time in India, it should be according to the technology. Otherwise, if we use those resources according to that, not a modern technology, and we are just following the old technology, it will be not useful for us. It will be not more fruitful for us. So it's very necessary that whatever the things, whatever the resources we are using, it should be technologically accessible. Second thing is economically feasible. Economically means if we are just obtaining the resource, we have to keep in mind it should not be the value. What is the value of the resource? It should be the value of the resource should be increased rather than obtaining those resources. The third is it should be culturally acceptable. Culturally acceptable means all the society, the members of the society, the nation, they should accept that resource for their uses. अब मैं आपको इसको और इलाबरेट करके समझाती हूँ. रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का मतलब वो सारे यूं कहा जाए नेचर में जो भी मटेरियल. अब हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा जो मटेरियल नेचर में वो सब हमारे लिए रिसोर्स है. रिसोर्स कब बनता है? जस्ट यू कीप इन माइंड, रिसोर्स तब बनता है जब हम उसको यूज करते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि इलेक्ट्रॉनिक है ना, वेजिटेबल्स हैं, कार्स हैं, ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है रिसोर्स आर ऑल्सो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स. व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स? द कॉमन थिंग दिस एग्जाम्पल इज दैट दीज आर यूजफुल फॉर अस एंड वी इंक्रीज द वैल्यू. अब हम इसको थोड़ा सा इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती है और ना भी आए तब भी आपको कोई भी रिसोर्स से रिलेटेड चैप्टर क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू गिव दिस डेफिनेशन एज इट इज एज विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट. क्योंकि हमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली सोशल साइंस के अंदर जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रो, इट्स वेरी कंपल्सरी. Then the second part is what is the asking the question, you have to give the proper answer.
then in the last you will give your conclusion if you come to know what will be the conclusion of this answer, तभी लिखना है। तो अगर हम अब इस चीज को समझे टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल मतलब हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है, जब हमने वो रिसोर्सेज को ऑब्टेन किया, वो टेक्नोलॉजी जो है उसको सूट करनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि उसको रिसोर्स को हम ऑब्टेन कर सके। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी या पुरानी टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू अगर आप काम करना चाहेंगे तो रिजल्ट निकलेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिकली फेसिबल। मैंने आपको क्या कहा कि रिसोर्स, जैसे कि मैंने कहा वुड है, वाटर है, अब इसको ऑब्टेनिंग में ही हम इतना पैसा खर्च कर दें और उसके बाद जो हमें मिल रहा है, नो डाउट इट इज वेरी यूजफुल, लेकिन अगर ऑब्टेनिंग में हमने पैसा खर्च किया तो उसको हम कहाँ पर कैसे उसको वापस गेन कैसे करेंगे? तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए। फेसिबल का मतलब होता है फैसिलिटी, इकोनॉमिकली उसको सूट करना चाहिए, पैसा ज्यादा नहीं खर्च होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ऐसी में। तभी तो हम आजकल आपको क्या कह आपका आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम सोलर पैनल की बात करते हैं ना, सोलर सिस्टम की बात करते हैं कि भाई सोलर पैनल लगाने चाहिए, जिससे कि एक बार इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है लेकिन उसका जो बाद वाले जो है वो कम होता है। सेकेंड थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब यह है कि कल्चरली मीन्स द सोसाइटी शुड एक्सेप्ट दोज मटेरियल्स एज अ रिसोर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। अब आपको मालूम है कि रिसोर्सेज, according to this definition, after that human beings, they always interact with nature. You everybody know we always interact with nature, and we can say technology, human beings and nature, these are interdependent, एक दूसरे पे, these are the physical factors. If you want to develop these resources, because the theme of your chapter is resource and development, how we can develop these resources through these physical factors. And we everybody know that nature uh, nature, technology, and human beings, these are interdependent. Whenever the humans they interact with the nature and they obtain these resources, these resources are for their development, for nation development. And first of all, it is very important. Human beings they interact with nature, and through the technology they use these resources and form the institution. These institutions are helpful for economic growth. तो अब इसको और तरीके से समझा देती हूँ कि ह्यूमंस जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? नेचर। नेचर के जितने भी सब्सटेंसेस है उनके साथ करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा हमें वुड चाहिए, तो वुड का क्या होगा? जाके पुराने टाइम में क्या होता था, कुल्हाड़ी लेते थे, एक्स लेते थे और कटिंग शुरू कर देते थे, है ना। लेकिन आजकल क्या है कि अगर हमें वुड चाहिए तो उसका भी साइंटिफिकली तरीका, उसकी भी एक टेक्नोलॉजी है, ताकि जो वो चीज जो है जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं उससे हमारे नेचर को भी नुकसान नहीं। तो वो जो टेक्नोलॉजी हमने एक्सेस करी वो हमारे इंस्टीट्यूशंस ने एक्सेस करी और उससे हमारा क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, है ना। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसके थ्रू रिसोर्सेज का। ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। That's why we can use all these resources which are available in nature for our growth, for nation's development. Yeah, everybody know that the minerals are available in nature, but because we can say that the human beings through the technology, through their thinking, through their intelligence, they use these minerals for many work purposes. In your earlier classes you always read about that resources are classified into human resources and natural resources. Why these are humans are called resources? Because of only this reason that humans have the knowledge, to proper knowledge to utilize these resources for enhancing the economy of nation, development of nation. So according to that, in this chapter, we come to the point now, the classification of resources. Here the classification of resources are given here on the basis of origin. Exactly, the direct question will come in your exam. What do you mean by resources? And write what is the class, or write the classification of resources. They can also ask you a very particular question also, like the difference between biotic and abiotic, non-renewable, renewable. You already read in your book lessons also in your previous classes and also in your science biology also.
So in this classification of resources, first of all, on the basis of origin. Origin means naturally. Origination, I told you, that is the source. जहाँ पर इनका origination हुआ. This is called the biotic and abiotic. Biotic, what do you mean by biotic? Those substances which have the living substance. You know, those are called the biotic. Like even human beings are also animals, vegetation, all these are biotic. On the other hand, abiotic, which do not have, on the opposite, vice versa is there, that the which do not have the living substance, they are static. We can say non-living things are like that, soil, rocks, metals, minerals, all are abiotic. So second thing is the on the basis of exhaustibility. First of all, we have to understand the meaning of exhaustibility. Exhaust होना यानी खत्म हो जाना. On sometime in once use, the resources could be exhausted, and sometime we can use for longer period. So it is also further it is classified in two parts: renewable and non-renewable. Renewable is also classified like the continuous and biological, and non-renewable is recycled and not non-recycled. So renewable means renew. These can be replenished. How these can be replenished resources? Through the, we can say, technology, chemical, physical. All these things are if these are play a very important role for the renewing the substances. अब रिन्यूएबल के अंदर हम अगर एग्जांपल दें तो क्या यूज कर सकते हैं? जैसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं. जबकि रिन्यूएबल के अंदर भी हमने बोला, मैंने अभी आपको बताया जैसे कॉन्टिन्यूस था, तो कॉन्टिन्यूस में है जो कि फ्लो करने वाले आते हैं, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया. तो सिर्फ जैसे बायोलॉजिकली है तो नेचर हो गया, जिसमें कि हम वाइल्ड लाइफ ले सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट लाइफ ले सकते हैं उसके अंदर. दूसरी सेकंड थिंग है नॉन रिन्यूएबल. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेम, नॉन रिन्यूएबल मीन्स इट कैन नॉट बी रिन्यूड, है ना. तो वापस जो है रिप्लेनिश नहीं होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जियोलॉजिकल पीरियड बोलते हैं इसको. इट टुक अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड टू रिन्यू. तो इसके अंदर भी नॉन रिन्यूएबल में भी रिसाइकल्ड होता है, नॉन रिसाइकल्ड. जैसे रिसाइकल में तो मेटल्स वगैरह कर सकते हैं, और जो रिसाइकल नहीं होते उन्हें दीज आर द वी कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जिनको हम दोबारा वंस यूज्ड दे कैन बी एग्जॉस्टेड. So in this way we also differentiate between the renewable resources and non-renewable resources. Whenever the question is there, you have to give through with examples also. आपको examples भी देने हैं, उसी से explain होगा. वो आपसे पूछे या नहीं पूछे, आपको examples से ही समझाना है, तभी वो चीज clear होगी. The third is on the basis of ownership. ऑनरशिप से हमें पता चलता है कि उसका मालिक कौन है ना, कि कौन ऑनर्ड है इसका. तो ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो दिस इज फर्दर डिवाइडेड इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओन रिसोर्स. अब इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, और फैमिली भी आ सकती है ना. इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज, लाइक यू नो एवरीबडी, आज तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, जैसे हमारा मकान है ना, हमारी गाड़ी है, कार है, और जो भी रिसोर्सेज हमारा, कोई फार्म हाउस है, कोई फार्मिंग लैंड है. अर्बन और रूरल एरियाज में दीज आर द डिफरेंट. अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो हम कहेंगे अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स हैं, प्लॉट्स हैं. ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं? जैसे हम ये कहते हैं कि जो भी और भी हम कह सकते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स आर देयर इन अर्बन एरियाज. So if these if you pay for them, if you buy, the individual is honored for those resources. On the other hand, in rural areas you see the fields are there, farmlands are there, है ना. तो ये सारी चीजें किसकी होगी? इंडिविजुअल्स की होगी, जो सिर्फ उनका ही उस पे ऑनरशिप है, तो उनका अधिकार. Discussing about the individual and community owned resources. Individual, now we understand that the resources which are used by, or who are the owner of those resources, are called the individual resources. They have the right to use these resources according to their requirement, according to their wants, and also they can use these resources for their profit also. नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन. कम्युनिटी मीन्स एक बड़ा समुदाय, है ना.
जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वी कैन से दैट सोसाइटी, पूरे लोगों का जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, दे ओन सम रिसोर्सेज ऑल्सो। अब ये रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, तो यू एवरीबडी नो कि जहां पर आपको किसी से ऐसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, या आपको उसके लिए, हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसे कम्युनिटी बेस्ड जो रिसोर्सेज होता है उनके लिए आपको कभी कभी जैसे एंट्री टिकट वगैरह देनी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर जो एरिया जहाँ पर जैसे फूडर कलेक्शन हो गया है ना, जहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल कलेक्शन हो गए, ठीक है, म्यूजियम्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, लाइब्रेरीज होगी, ऑल दीज आर कॉल्ड द कम्युनिटी बेस्ड। So community owned resources means very large people, very large group of people, they access these resources. Okay, so these are open for all, and there is no person can just they can declare itself that it belongs to me only, कि वो केवल ये नहीं कह सकते कि ये नहीं, दूसरे इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए फोर्ट है, म्यूजियम्स वगैरह, यहाँ जाते हैं तो कई बार हम लोगों को जो है एक मिनिमम अमाउंट टिकट के लिए देना होता है, बाकी ये कम्युनिटी उसमें रिसोर्सेज नहीं आते हैं। फ्यूनरल जो है जो लैंड होती है वो भी उसमें ही आती है। तो ऑल दीज आर कॉल्ड द community owned resource. Next is an ownership is national and international also. National resources, first of all, the very simple in language we can understand what you mean by national resources. National resources, those resources which are found in the boundaries of a nation. You know, not outside of the boundary, inside of the boundaries, all these are called the national resources. और आपको पता होना चाहिए कि दैट द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू यूज देयर रिसोर्सेज फॉर द नेशंस डेवलपमेंट, इवन द दे कैन आल्सो टेक अवे द प्राइवेट लैंड ऑफ इंडिविजुअल। समझ रहे बात को, कि अगर किसी की प्राइवेट लैंड भी है, समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि उसकी खेत में से, फील्ड में से कोई ऑयल का कुआं है ना, तो वो लैंड क्या करेगी, सरकार अपने उसमें ले लेती है ना, और उसको जो अमाउंट होता है वो अकॉर्डिंग इट विल बी आल्सो decided by the government how much amount, how much money should be paid to the particular person. तो उसको कितना देना है ये भी गवर्नमेंट करता है। तो कहने का मतलब है फॉरेस्ट एरिया, water resources, mineral resources, metals, all these are resources are used by the government in for the development of the nation, for the economic development of their country. तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज, और अगर इसमें कुछ एक पर्टिकुलर आपके वो दे रखा है कि वाटर रिसोर्सेज का एरिया दे रखा है ना, कि वाटर रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द वी कैन से देयर इज अ water resources are there where the we have the right to 12 nautical miles है ना, इसमें 12 nautical miles 19.2 किलोमीटर समथिंग ये होता है एरिया, जिसपे कि नेशन का राइट होता है उसको यूज करने का। देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आउटसाइड। तो और इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसोर्सेज विद द रिसोर्स, यू एवरीबॉडी नोट इन इंडिया देयर आर सो मेनी रिवर्स आर देयर। तो वो रिवर्स का जो है और सीज का जो है वो जितना भी एरिया जैसे भी यूज करना है, हमारे सरकार के पास, हमारे गवर्नमेंट के पास ये राइट है, तो क्योंकि वो हमारी नेशन की बाउंड्री में आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नेशनल। सेकेंड थिंग इज हियर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल के नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल, जहां पर सारे जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं दे वांट टू एक्सेस, they want to access to use all those international resources. International resources are those resources which are out of the boundary of a nation, है ना। जैसे कि हम ओशंस की, ओपन ओशंस है, हमको मालूम है 5 ओशंस आर देयर, तो वो ओपन ओशंस को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका भी एक बना रखा है कि कितना एरिया तक हम उस ओपन ओशन को यूज, 12 नॉटिकल सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स है, जिसके अंदर कि अगर हमको उस ओपन ओशन को, जैसे हम कहते हैं ना सबमरीन मरीन, जो आप लोग देखते हैं कि अरे चाइना की सबमरीन देखी गई, इंडिया ने अभी सबमरीन लॉन्च की है अपनी नई, तो वो सब क्या है ना। अभी तो ये सारी चीजें क्या आती है, इंटरनेशनल आती है। उसके लिए एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, दिस इज द एरिया विच वी यूज्ड फॉर international purposes to obtain the resources or international resources or to access the international resources. The system, the institution is a special, we can say exclusive economic zone or special economic zone. So in this way, these international institutions, we have to first seek the permission from these institutions
If they grant the permission, then we can use these international resources. तो ऐसे कई सारे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग आपको पता है कि अपने जो नॉट ओनली इन वाटर बट इन स्काई देयर इज आल्सो ओपन स्काई, देयर इज आल्सो लिमिटेशंस. कई बार होता है ना कि अपन देखते हैं कि वो मिग विमान वहां तक से आया, पाकिस्तान का ये आया तो उसको मार गिराया, वो भी होता है, उसका भी एरिया होता है. So these are the, we can say, national or international resources based on the ownership. I hope that you understand the meaning of individual, community based and national and international. Now, in the fourth, that is the on the basis of the status of development. Status of development means development का status क्या है. क्या वो पूरी तरह से रिसोर्सेज डेवलप्ड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, या उनमें कोई पोटेंशियलिटी है, या रिजर्व की तरह रख सकते हैं, या स्टॉक की तरह रख सकते हैं उनको फॉर द फर्दर यूजेस ऑल्सो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इन प्रेजेंट टाइम वी कैन नॉट यूज ऑल दीज रिसोर्सेज? There could be so many reasons behind it. So first of all, we have to know what are these status of develop based on the status of development resources. These are further classified in 4 parts. Those are called the potential, second is developed, third is stock, and fourth is reserves. First of all, we have to understand the meaning of potential. Potential means, what do you mean by this? Potentiality is there. You all students have potentiality. What type of potentiality? Means to score good marks. मतलब किसी चीज के अंदर आपके अंदर वो चीज है, वो आप में एक स्पिरिट कह सकते हैं, वो एक संभावना कह सकते हैं कि वो पोटेंशियलिटी है. अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो द एरिया विच हैव सम रिसोर्सेज दे हैव द पोटेंशियलिटी इन यूज. There are so many resources which have the quality, which have the potentiality for further or in different ways to use them. लेकिन but we have not used them, still we have not used them because of so many reasons. कोई भी रीजन हो सकता है. अब मैंने आपको ये बताया, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से लाइक द इन गुजरात एंड राजस्थान देयर इज अ पोटेंशियलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, है ना. सोलर एनर्जी का जैसलमेर है, ये सब एरियाज जो है हम वी कैन से दैट वी कैन यूज फॉर because of all these reasons we can use, but it has the potentiality to use them. Water, here the water we can use for making hydroelectricity. So this is called the potentiality. Developed here means, developed के word से ही समझ में आ रहा है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Developed means the resources whose quantity and quality is surveyed. Quality and quantity is surveyed, but these are not used. These can, and they also these are not used because what is the reason behind that? Because whenever they required, they can use them through the, but what it requires a proper technology. भाई डेवलप्ड तो है, क्वांटिटी क्वालिटी सब सर्वे हो चुका है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा. इस चीज को हम इससे भी समझ सकते हैं. मैंने आपको क्या कहा कि टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल. डेवलप्ड तो है, you know the quantity and quality of those resources, but it should be also according to the technological accessible. So that's why these resources are also not used, है ना. और जब टेक्नोलॉजी आएगी तो यूज हो जाएंगी. थर्ड आपका आता है स्टॉक. स्टॉक मीन्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, यू स्टॉक देम. स्टॉक का मतलब सबको पता है कि क्या चीज होती है, स्टॉक करके रखना किसी चीज को. एंड बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? स्टॉक करके क्यों रखा है रिसोर्सेज को? उन रिसोर्सेज को स्टॉक इसलिए किया है कि हम अभी सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं, उसको मेकिंग सोलर एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहे हैं, विंड एनर्जी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं मालूम. नो हाउ, कैसे करना है यूज, वी डोंट नो, स्टिल वी डोंट नो द हाउ टू यूज ऑल दीज रिसोर्सेज. कैसे उसको यूज करके रिसोर्स बनाना है, बिकॉज द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, द इग्नोरेंस ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इसलिए स्टॉक करके रखा है. और रिजर्व जो है, व्हाट इज द रिजर्व? इट इज आल्सो कॉल्ड द सबसेट ऑफ स्टॉक. सबसे पहले सबसेट का मीनिंग समझेंगे. सबसेट का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसेट का मतलब होता है दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लार्जर थिंग्स, कि ये जो रिजर्व्स हैं वो स्टॉक का ही पार्ट है, कि रिजर्व स्टॉक में जो चीजें हैं वो ही चीजें रिजर्व्स में आती हैं, बट रिजर्व्स आर इन सम स्मॉल
है ना कि रिजर्व किसके हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ स्टॉक। इस स्टॉक में ज्यादा लार्जर उसमें है, रिजर्व में कम है। एंड रिजर्व आर, अब आप सोच सकते हैं कि रिजर्व कब कर रखते हैं कोई चीज, हम कोई चीज रिजर्व कब रखते हैं, हम सोचते हैं फर्दर यूज करेंगे ना इसका। जैसे हमने कहा कि हमने ये पैसा रिजर्व रखा हुआ है फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, फॉर हेल्थ इश्यूज, इन सब के लिए। तो यहाँ पर रिजर्व रिसोर्सेज का मतलब क्या है, द रिजर्व रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर इन फ्यूचर, and technologies, their quantity, quality, these are all properly surveyed, but these are reserved for in further situation, in further needs, कि आगे आने वाले उसमें हम इनको यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी, what are these are the topic we discover or we discuss about the classification of resources, origin, exhaustively, ownership, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका सेपरेट क्वेश्चन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द डेवलप स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्लासिफाइड द रिसोर्सेज। तो उसमें आपको पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स को एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, ये हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स आप उस चीज को पहले क्लियर करेंगे, है ना, वन बाय वन हेडिंग जो है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से क्या चीज जो है हमने इस चीज को आप जो है उसकी प्रेजेंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वट एवर द आंसर यू गिव, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी प्रॉपर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, development of resources. The next topic is development of resources. जितना भी हमने यहाँ डिस्कशन किया अभी, तो हमें एक बात तो अच्छी तरह सबको समझ में आ गई कि ये रिसोर्सेज क्यों यूजफुल है, बिकॉज वी कैन से दीज रिसोर्सेज दे सस्टेन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी इनसे चल रही है। ये जो केवल ह्यूमन बींग्स की नहीं, ये जो पूरी फ्लोरा एंड फौना है, इन सबकी लाइफ किससे चल रही है, ह्यूमन बींग्स की भी रिसोर्सेज। So these resources are very essential. Now the topic is here development of resources. Now these resources, how we can develop these resources? इनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? आपको पता है कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल, some people they think that these resources are free gifts of nature, unlimited and resources, जैसा मर्जी इनका हम यूज करें। But we can take also example of water. We everybody know, we think that the water is everywhere, so we can use them for many purposes. Here, the water is underground water is there. If we overuse this water, after some time, the water table will be also below. So what it requires? It requires proper management, proper we can say planning to use all these resources. Okay, so these are very essential, development of resources. I gave you the basic idea about the development of resources. Okay, tomorrow we will discuss about what is the development of resources, how we can develop those resources. So here I finish my